کے علامہ مولانا محمد بدیع الزمان بٹی صاحب ایڈوکیٹ آپ قبلہ تشریف لائیں گے. آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے گروپ اذہان کو پروگرام معطر کریں گے. قبلہ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنا آخر الأمم. صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. ادب والے کو سب کچھ ملتا ہے کہ ادبا کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. جی تو سب کچھ لینا آئے ہو تو پھر دوزانو ہو کے اتنے بیٹھو سامنے تو محبت نال پیار نال سنو تو پھر سب کچھ حاصل ہو جائے گا. تو جی صرف بندہ ویکھنا ہوتا ہے تو اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جڑے بندے کھڑے ہو نا ادھر بیٹھ جاؤ سارے ادھر بیٹھ جاؤ اور جب دور کھڑے ہو تھی بھی بیٹھ جاؤ گے. جی ادھر بندے کھڑے ہو تھی بھی آن کے بیٹھ جاؤ. جڑے بچے پانی پلا رہے ہیں انہوں بھی انتظام کر رہے ہو. باقی سارے دوست بیٹھو بیٹھ جاؤ. منن جو فائدہ ہوتا ہے بیٹھ جاؤ. مہربانی ہوئی. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا افقالنا یا سیدی سہل لنا افقالنا یا سیدی سہل لنا افقالنا. ہزار بار بشر امتحان بخش گلا انوز نام تو گفتن کمال پہ اکیس نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیس سوئے قطار نی کشم ناقائے بے زمان را. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. آپ اٹھا کے کہہ دیں بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. کوئی نبی نہیں. کوئی نبی نہیں. کیونکہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. اما بعد اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک ولی کامل کے عرش مقدس کی تقریب میں حاضری کی توفیق بخشی اور ختم نبوت کی عظیم اس کانفرنس عرس کی عظیم کانفرنس اور مشن ختم نبوت میں حاضری کی توفیق بخشی اور لاتعداد درود و سلام کے تحائف اس کریم کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں جو ہم گناہگاروں اور سیاہ کاروں کے لیے رحمتاً للعالمین اور شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے. نسبتوں سے نہ ہو اگر تو محاسن کی گناہ نسبتوں سے نہ ہو اگر تو محاسن کی گناہ وہ شفاعت پہ ہو مائل تو جرائم بھی قبول. صدر مجلس عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت مزاج شناس اہل محبت شہزادہ پیر جماعت علی محدث علی پوری حضرت پیر سید خورشید احمد صاحب جماعتی نقشبندی
ज़ीद मजदहू हाफ़िज़ुल्लाह ताला बानी और सरपरस्त आला अमीर मिल्लत इस्लामिक यूनिवर्सिटी और जुमला सादात कराम उलमाए अहले सुन्नत दुआमाए मिल्लत सनाखाना नशीदी लिसान बरादरान तरीक़त अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि मैं आज मेरे लिए ये एजाज़ है कि इतनी बड़ी दरगाह के सजादा नशीन में इतनी बड़ी उर्स की तकरीब में मुझे अपनी नबूवत के पैगाम के लिए हुक्म किया तो मैं हाज़िर हो गया। आज उर्स है उसका जिसके अलकाब की एक तवील कतार बनती है, जिसका अरब व अजम पर एहसान है, जिसे अबू अल अरब भी कहते हैं, जिसे सन्योसिये हिंद भी कहते हैं, जिसे अमीर मिल्लत भी कहते हैं, जिसे पीर तरीक़त भी कहते हैं, जिसे रहबर शरीयत भी कहते हैं, जिसे रूहानी बानी पाकिस्तान भी कहते हैं। मेरी मुराद आले नबी औलाद अली हजरत पीर सैयद जमाल अली शाह पूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नब्बिरुल्लाह मरकज़हू आपका अज़ीम शान उसकी तकरीब पर खत्म नबूवत का पैगाम देने का हुक्म मिला। मैं हाज़िर हूँ। तो वक्त इतनी बड़ी सवालत हो गई। आप काफ़ी देर से बैठे, मुझे इल्म हुआ 10 बजे से 11 से महसूस शुरू है, गर्मी की शिद्दत है और आपकी हिम्मत को सलाम है। आप अब आपकी अकीदत और मोहब्बत को भी सलाम है कि आप शिद्दत की गर्मी में भी अपने शहर के उर्स में हाजिर हैं और अल्लाह और उसका रसूल सुनने बैठे हैं। और यकीनन यही जिद्द, यही महफिल, यही निस्बत हमें कल महशर की गर्मी से बचाएगी इंशाअल्लाह। अब बिला तमहीद क़िबला पीर साहब के हुक्म की तामील करते हुए पीर जमात अली की हस्ती का नाम है ना, पहले तो ये सुन लेते हैं। आपकी मिशन बात करूंगा। पीर जमात अली कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी शख्सियत का नाम पीर जमात अली है। ये बात ध्यान में रखें कि आप एक मजलिस की सदारत फरमा रहे, कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे थे। ये अल्लामा इकबाल देर हो गई, वो जब आए तो कुर्सी में स्टेज की भाई थी और खाली कोई नहीं थी, लोग नीचे बैठे हुए थे। तो अल्लामा इकबाल भी आए। अल्लामा इकबाल कौन? जिसे कलंदर लाहौरी कहा जाता है, जिसे शायर मशरक कहा जाता है, जिसे ईरान वालों ने फारस वालों ने ये कहा कि ओ हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इकबाल की शान है। अगर हमारे पास इकबाल होता तो उसके अशार को सोने के पानी से महफूज करते। इतनी बड़ी शख्सियत कलंदर लाहौरी इकबाल जब आया, देखा कि अमीर मिल्लत मसनद सरायत पे हैं और कुर्सियां भर चुकी हैं और एक जैसा उरूज पर है, तो आते ही पीर साहब के कदमों को हाथ लगाया और कदमों में आकर बैठ गया। किसी ने इशारा किया कुर्सी, तो कहा नहीं, बलियों में कदमों में बैठना ही बाइस से मौतब रहमत इलाही, अल्लाह की रहमत का बाइस बन जाता है बलियों के कदमों में। तो इकबाल ने कहा ना, तो पीर जमात अली मोहम्मद शरीफपुरी का चुना सुनिए। फरमाया फिर उसका क्या कमाल है ना, जिसके कदमों में इकबाल आ जाए, जिसको समझ आए वो बोले दूसरे को दावत दे। क्या बात है। इकबाल तो मानो में इकबाल का माना है उरूज, बुलंदी, और इकबाल ज़ाहिरन वजूद के नाम से भी इकबाल वो भी शख्सियत का नाम है। पीर तो तरफ से केवल सवाल किया, फिर उसका क्या आलम है जिसके कदमों में इकबाल आ जाए। इकबाल ने पांव पे हाथ रखकर फिर पति ये शेर कहा, और ये शेर जिसको समझ आ जाए आज के उसकी तकरीब में ले जाए। इकबाल कहता है, सर रख के तेरे पांव पे कहता है इकबाल, तेरी बने इकबाल हजारों लजपाल जैदी ज़ात, लजपाल जैदी ज़ात, लजपाल जैदी ज़ात, नारे जमात किया। जमात अली मोहम्मद शरीफपुरी किस हस्ती का नाम है? वो इकबाल भी नाम कहता है, मैं इकबाल आपके कदमों पे नहीं आया, आपकी ठोकर से हमारा इकबाल बनते हैं और बनेंगे। तो जमाने में देखा पीर जमात अली मोहम्मद शरीफपुरी ने जहाँ जहाँ निगाह की, वहाँ हीरे पैदा हुए। अरे पीर जमात अली जिस हस्ती का नाम है ना, अरे इश्क
مصطفیٰ کا مستہ ہے خدا کا، عشق مصطفیٰ کا مستہ ہے۔ جب سے فضائل میں سید نے آنکھ کھولی اور مرزے قادیانی کے جب سے کتاب آئی اور دعوے کا پتہ حضرت پیر جماعت علی کو لگا، رب کعبہ کی قسم مرزے کے مرنے تک پیر جماعت علی کے لیے بھی سانس لے لیا، بڑھاپے کی عمر میں بھی چار پائی اٹھا کر بھی ختم نبوت کو پیدا دینے کے لیے مارو آئے چلے گئے۔ جماعت علی کی سستی کا نام ہے ایک دفعہ یہ مرزے کا چمچہ نور الدین بھیروی ناروال آیا۔ حضرت آپ کی طبیعت قلیل تھی، صاحب فراش تھے، بہت رہی نماز کی چار پائی میں بیٹھ کر پڑھتے چیر پہ، ارے سیدان لو سیدانی طویل اتنی سخت بیماری، لیکن پتہ چلا نور الدین بھیروی ناروال آیا ہے اور مرزے کی چھوٹی تبلیغ کر رہا ہے۔ حضرت کے دادا جان پیر جماعت علی نے پتہ کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا چار پائی میری اٹھاؤ اور گاڑی پہ رکھو لیتا ناروال، مریدوں نے اس کی حضور گرمی بڑی، موسم کی شدت بھی ہے اور آپ کی طبیعت بھی شدید ہے، حضور آپ آ جائیں کسی عالم کا بیٹے، فرمایا اور جھوٹی نبوت کا چیلا ناروال آ کر جھوٹی نبوت کی تبلیغ کرے، سچے نبی کا نواسا بستر پہ پڑا ہے۔ گئے ہی صرف پیر صاحب کا پتہ ہی چلا اس نے نور الدین بھیروی کو دوڑ کر بھاگ گئے تو پیر ناروال میں چھوڑ گیا، اسے پتہ تھا نبی کا پوتا نبی کا نواسا آ گیا ہے۔ اور جسے اس بات پہ مزہ آیا ہے، ذرا پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ بغیر مائک کے بھی آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے۔ میں ایک بات وہ مکالمہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو پیر جماعت علی امیر ملت نے خود مرزے کے خلاف مرزے کے مقابلے میں لکھا۔ سننا چاہتی ہوں میں مکالمہ؟ میں ایسے نہیں سننا چاہتے ہو کہ پیر جماعت علی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دن بھی مرزا نہیں آیا، امیر ملت کے مقابلے میں ایک دن بھی مرزا سامنے نہیں آیا، سامنے آتا تو کلمہ پڑھ جاتا، سامنے آتا تو کلمہ پڑھ جاتا، لیکن وہ سامنے تو نہیں آیا، ادھر ادھر کی مارتا اور مقابلے پہ اشتہار چھپاتا اور چیلنج کرتا، جھوٹے دعوے کرتا، آگے پیچھے ہو جاتا۔ جماعت علی امیر ملت نے مدد سے پتہ کیا کہا؟ سنو 5-6 شاید مکالمہ، فرمایا جاؤ مرزے سے لے کر، وہ مقابلے میں تو نہیں آیا، جاؤ میرا یہ تحریر اسے دے دو، میرا مضمون اور میرا مقالہ اسے دے دو، اسے کہو کہ ضرورت ہے تو اس میں سے کسی ایک کا جواب دے۔ ایسے نہیں سناؤں گا، اگر آپ ٹھنڈے گھر میں بالکل باقی ہے، مجھے اندازہ ہے، میں 2 گھنٹے سے انتظار کر کے میں جانتا رہا موسم کی شدت اور حدت ہے، آپ علماء کے خطابات کی آپ نے سنے، شناخانی بھی سنی، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ کی بڑی بات ہے خدا کی قسم، اس گرمی کے موسم میں سننا، لیکن تھوڑا سا اور آخری کہتے ہیں آخری بار ایک اور محبت کے ذوق سے سنو گے تو یہ بات میں آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے۔ امیر ملت نے 5-6 نواتی ایک مکالمہ لکھا، فرمایا ہوئے مرزے سے کہو وہ سامنے تو نہیں آیا، نہ آنے کی ضرورت ہے، اس سے کہو شرائط نبوت کی کوئی چیز ہوتی ہے، ان شرطوں میں سے کسی ایک شرط پہ مرزے کو پورا کر کے دکھاؤ، جاؤ چیلنج کرتا ہوں، لیکن علی کے پوتے نبی کے نواسے کے سامنے آنکھیں جڑ نہ ہوئی۔ سنیے بھلا کیسے؟ جماعت علی امیر ملت نے شرائط نبوت میں سے پہلی شرط لکھی کہ نبی کا نام سنگل ہوتا ہے، نبی کا نام تو جو ہے ایسے نبی کا نام سنگل مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے، 2 جوڑ میں نہیں ہوتے، 2 لفظ نہیں ہوتے، مرکب نہیں ہوتے، مفرد ہوتا ہے۔ مثلا پھر دلیل دی آپ نے، فرمایا جتنے سچے نبی آئے ہیں نا ان میں سے سب کے نام مفرد ہیں، سنگل ہیں، مثلا نوح، شیس، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی آئے ہیں نا
सब के नाम मुफरद हैं, मुरक्कब किसी का नाम नहीं हुआ। पीर जमात अली का दुर्रा अल्लाह की कसम इतना वजनी नहीं है। मुझे भी 20 साल हो गए अल्लाह के फजल से, 20 साल हो गए अल्लाह के फजल से मकीने गुंबद खजा की रहमत और सादात की रूहानी तवज्जो मुर्शिद करीम की दुआ से तकरीबन 20 साल हो गए पीर जमात अली का दुर्रा उठाए मैदान में आता हूँ। आज भी किसी मज़हब की चमक नहीं। मजा नहीं आया यार आपका मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसाल। इनसे नारा मैं सुनना चाहूंगा। ये जो बैठे हैं साथ बैठे, ये जो गैरतमंद बैठे हैं उस्ताद बैठे, इनसे मैं रिस्पांस लूंगा। माइक के बगैर हम नारे का इंतजार है। नारा आए भला मुझे पता चले। नारा तकबीर। यकीन कर ले काबा के रब की कसम शादी मैंने फिजियो मुनाजरे किए, मर्दियों से मुनाजरे हुए। पीर जमात अली का ये दुर्रा लेकर चाबी में मैदान में खड़ा हुआ। मैंने कहा मुरब्बी बता मुझे, पीर जमात अली अमीर मिल्लत ने ये तेरे मिर्जे को दुर्रा मारा था। 100 साल हो गए तुम्हारे मिर्जे ने जवाब नहीं दिया, मिर्जे के बेटे पिछले जवाब नहीं दिया, नूरुद्दीन पैरवी ने जवाब नहीं दिया, मिर्जा ताहिर ने जवाब नहीं दिया, मिर्जा नासिर ने जवाब नहीं दिया। आज लंदन में बैठा मिर्जा मसरूर जवाब नहीं दे सकता। तेरी क्या औकात है मर्ज़ैया, मुझे इसका जवाब दे। मेरे रूहानी बाबे पीर जमात अली ने लिखा जो नबी होता है उसका नाम मुफरद होता है। मिर्जा गुलाम अहमद का नाम गुलाम अहमद है। मिर्जे का नाम ही उसके झूठे होने की दलील है। मिर्जे का नाम ही उसके झूठे होने की दलील है। ये पीर जमात अली का दुर्रा है, आज तक चल रहा है। यकीन करें आज तक उसका जवाब ही नहीं आया। दूसरा दुर्रा सुनाऊं, अब चस ले ले। 4-5 आज दुर्रे ले गए ना तो हजरत का उर्स और हजरत के रूह ताज़ा हो जाएगी, रूह खुश हो जाएगी और रूह उनका फैजान आपको मिलेगा कि मेरा रूहानी फर्जंद, मेरा बेटा आज मेरे मिशन का सबक मेरी मुरीदों को सुना रहा है। सुभान अल्लाह। पीर जमात अली वो अमीर मिल्लत ने कहा, पीर जमात अली ने लिखा कि सच्चा नबी का नाम सिंगल हो और मिर्जे का नाम गुलाम अहमद है, डबल नाम मिर्जे के झूठे होने की दलील है। और दूसरा बड़ा कमाल का नुक्ता, दूसरा दुर्रा पीर जमात अली का इससे भी बड़ा बारीक मिला। अमीर मिल्लत का दुर्रा बड़ा है। जो सुनना चाहेंगे जो करेंगे पीर जमात अली का अमीर मिल्लत का दुर्रा कैसा है। दूसरा दुर्रा फरमाया नबी किताब लिखता नहीं है, नबी किताब लेकर आता है। मिर्जे ने 88 किताबें लिखी है और मिर्जे का किताबें लिखना मिर्जे के झूठे होने की दलील है। जैसी शिद्दत की गर्मी है वैसी जज्बात की गर्मी भी हो रहा है। शिद्दत की गर्मी तो है ही, जज्बात की गर्मी भी हो रहा है। पीर जमात अली अमीर मिल्लत आपने फरमाया। दूसरा ये है कि कोई सच्चा नबी किताब लिखता नहीं है। वहाँ मिर्जे ने 88 किताबें लिखी, मिर्जे का किताबें लिखना उसके झूठे होने की दलील है। और तीसरा सुनेंगे ना तो इससे भी बड़ी चस आ जाएगी। यकीन करें मैं कल ये तीसरा दुर्रा खिलाता हूँ मिर्ज़ई के सामने तो मिर्ज़ई के मैं पसीने छूटते हुए इस वक्त जैसे आपको पसीने आए हैं गर्मी की वजह से, मैंने एसी के कमरे में बैठे हुए मिर्ज़ई मुरब्बियों के पसीने छूटते देखे हैं। ये तीसरा दुर्रा जब मैं लगाता हूँ पीर जमात अली अमीर मिल्लत का, वो वजह क्या है? पीर जमात अली अमीर मिल्लत ने तीसरा दुर्रा हदीस की रोशनी में लगाया। फरमाया हदीस की रोशनी में नबी जहाँ मिसाल करे वही मिजाल बनता है। समझ आई है? पीर जमात अली की पेशीन गोई को पूरा करते हुए मिर्जा वास में करने आ गया। और दूसरा मिर्जे को दफनाया कहाँ? सारे गांव जुबाने गांव सारे चौकी अक्षर से मैंने कहा मैं बताऊं रेलवे
की रेलगाड़ी और रेलगाड़ी जो माल गाड़ी है ना रेलवे की, उसमें बुक करा के मिर्जे को लाहौर से कादियान ले जाया गया। मिर्जे की कब्र कादियान में है। तो पीर जमात अली का दुर्रा ये है, नबी जहां विसाल करे वही रेलवे स्टेशन से जो होता है रोड जाता है उसके सेकंड फ्लोर पे खाने में 26 मई 1908 रोज मंगल सुबह 10:30 बजे पीर जमात अली की तशरीफ गोई को पूरा करते हुए मिर्जा आसमे कहने आ गया। और दूसरा मिर्जे को दफनाया था मेरे को मैं बताओ रेलवे की रेलगाड़ी और रेलगाड़ी जो मालगाड़ी है ना रेलवे की उसमें बुक करा। कितने हो गए? 4 यारों की निस्बत से चौथा आए, बोली आए बेटा मरिया कहाँ पे? ये तीसरे को पहले मुकम्मल थोड़ा सा कर ले। मिर्जा कादियानी खुद कहता था मंगल का दिन बड़ा मनहूस है, उसके बेटे ने सीरतुल मादी में लिखा मंगल का दिन मनहूस है। हमारे पीर का ये जुमला झूठा साबित करने के लिए मिर्जे को कहीं दफना तो देते, कल को ये तो कहते कि पीर के माता ने कहा था देखो हमारा मुर्दा तो उसी जगह दफन है ना, और मरा लाहौर में दफनाया कादियान में। पीर जमात अली फरमाते नबी जहां विसाल करता है वही मिज़ार बनता है। मेरे मिल्लत की पशीन कोई भी तो होगा मैं आगे से गाविया किताब का नाम है, हिस्सा 2 है। ये मेरे जदे आला हजरत पीर गुलाम हसन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं, अल्लामा मोहम्मद आले मासी अमृतसरी, जिन्होंने ये किताब लिखी। और जब पीर जमात अली ने शाही मस्जिद के अंदर जलसा किया था ना, तब ये पीर अलामा और उसके बेटे ने ये भी लिखा कि बाजी मंगल कोई बहुत हुए अल्लाह के सारे दिन बरकत वाले सारे दिन अच्छे हैं। अल्लाह ने भी फरमाया जिसको मनहूस कहता था उसी में मनहूस जाएगा। ये 25 मई रात को 10 बजे खिताब हो रहा है, रात के वक्त। पहले टाइम नोट करें जरा, 25 मई 1908 रात 10 बजे के करीब खिताब है। आपने फरमाया लोगों तुम्हें पता है पशीन गोइयां करना मेरा काम नहीं है, ना मैं पशीन गोइयां गुलाम हसन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं, अल्लामा मोहम्मद आले मासी अमृतसरी, जिन्होंने किताब लिखी। और जब पीर जमात अली ने शाही मस्जिद के अंदर जलसा किया था ना, तब ये पीर अल्लामा आसी साहब जो थे वहां मौजूद थे, और अल्लामा फैजी साहब जहन्नम में हो जाएगा। सुनोगे तो चस आ जाएगी। किसी हल्के ईमान वाले ने पूछा शाह जी कल तक ना मरा तो डींगे बच जाएंगी, ढोल बच जाएंगे। 25 मई रात को 10 बजे खिताब हो रहा है, रात को 24 घंटों के अंदर अंदर टाइम रोक के लगा। 25 मई 1908 रात 10 बजे के करीब खिताब है। आपने फरमाया तुम्हें पता है पशीन गोइयां करना मेरा काम नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी और 24 घंटे पूरे नहीं हुए। ये रात 10 बजे की बात है कि रात ही को मिर्जे को डबल हैजा हुआ। सुबह अगले दिन 10:30 बजे, 10 बजे भी नहीं 10:30 बजे दिन के अंदर मिर्जा बस में जहन्नम हो जाएगा। डिस्पोजेबल विंडो का बनाया हुआ था, उसके अंदर मिर्जे को मुंह से भी चक्कर आया, वहीं पे गिरा, चक्कर खा के अपनी गलाजत खाता जहन्नम को तरफ रसीद हो गया। और फिर जमात अली की पेशेन गोई सूरज से ज्यादा रोशन होकर लाहौरियों ने जश्न मनाया, उलमाए अहले सुन्नत ने जश्न मनाया। और 24 घंटे पूरे नहीं हुए। ये रात 10 बजे की बात है कि रात ही को मिर्जे को डबल हैजा हुआ। सुबह अगले दिन 10:30 बजे, 10 बजे भी नहीं 10:30 बजे दिन के ब्रांड रोड के एमपीए बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के डिस्पोजेबल खाना डिस्पोजेबल विंडो का बनाया हुआ था, उसके अंदर मिर्जे को उल्टियां भी आई, मिर्जे को मक्खन से भी काला देता है, मुंह से काला देता है, और चक्कर आया। जो बैठा जमीन पे हो और लोहे कलम पे लिखी जिंदगी और मौत के फैसले भी पढ़कर अलग ऐलान सुना दे, और उसे पीर जमात अली कहते हैं। तुम्हें क्या पता पीर जमात अली किस हस्ती का नाम है, सारी जिंदगी मिशन पे गुजारी। और चौथा दुर्रा पीर जमात अली का सुनो, 5 सुनाना 5 टन की निस्बत से, चौथा सुनिएगा तो चस लीजिएगा। चौथा ये है पीर जमात अली अमीर मिल्लत, आपने अपने मकाले में चौथा दुर्रा मर्जियों को लगाया
اور مرزے کی زندگی میں لگایا اور مرزے کو یہ مقالہ پہنچا بھی ہوگا اور مرزے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آج تک دنیا مرزیت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اے پیر جماعت علی کے بیٹے آج بھی میدان میں ہیں, آج بھی روحانی بیٹے میدان میں ہیں, آج بھی خواجہ غلام مستقیم کے روحانی بیٹے, پیر مہر علی کے روحانی بیٹے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے روحانی بیٹے آج بھی میدان میں ہیں. مرزیت جرت ہے تو ہمارے بزرگوں کے دروں کا جواب ہی دے دو. مرزا سے تو نہیں دے پایا, تم میں جرت ہے تو آ جاؤ میدان لگانا. سال چلے آگے کوئی کا جواب نہیں آیا, ہماری زندگی میں بھی نہیں آیا, بزرگوں کی زندگی میں نہیں آیا, ہماری زندگی میں نہیں آیا. آگے سنیے چوتھا سنیے گا سب کی نہیں ہے, سنیے فرمایا نبی کی شاعری ہے, نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. مصطفیٰ کا صدقہ مل کے کہیں سبحان اللہ. فرمایا نبی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے اور امت میں اس سے زیادہ حسین ہو جائے تو نبی نہیں رہتا. میں نے کہا مرزا قادیانی کی شکل دیکھ, عقل دیکھ اور اس کی صورت دیکھ, اس کی سیرت دیکھ, کھانی آنکھ والا, بھینگا, لولا, لنگڑا, گنجا, پرلی شکل والا, اور کہاں آمنہ کا لال, کہاں یہ گندی جھپڑ کا کیڑا. تاجدار ختم نبوت, ہاتھ ہر بندہ اٹھا کے پکارے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت جی یہ میں نے مناظرہ غالباً علی پور میں بھی سنایا تھا اور یہاں بھی سنانے لگا ہوں کیونکہ وہ بھی یہی کانفرنس تھی اور یہ بھی وہی کانفرنس ہے. وہی اسٹیج ہے, وہی منظر ہے, وہی فیض ہے, وہی سلسلہ ہے, وہی نسبت ہے, وہی کرم ہے, وہی فیض ہے, وہی عکس ہے, وہی چمک ہے, وہی جمال ہے, وہی رونق ہے, وہی آستان ہے. اس لیے وہی سنانے میں توجہ کرنا ہے. ایک مردئی سے میرا مناظرہ ہوا, وہ ذرا چکے رکھ رہا سی, ایک والوں کے گزارش سے ذرا توجہ کروں گا, آزاد کی علماء کی چٹھی والا تھی وہ مردئی مربی, اور بات ہوتی رہی, بات تو چلتے چلتے میں نے یہاں پر یہ جو چوتھا در ہے نا پیر جماعت علی کا, میں نے کہا پلیز او مرزائی, میں نے کہا مرزا قادیانی کی فوٹو دیکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہمارے گھر میں بھی لگی ہے. میں نے ساتھ ہی سیرت المیاد میں اس پر لکھی جانے والی بیٹے کی کتاب اٹھائی جو مرزا کے بیٹے کی ہے, وہ بھی ساتھ لکھی, فوٹو بھی ساتھ اس کی. میں نے کہا مرزا کی دونوں آنکھوں میں فرق ہے نا, ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا مرزا کے بیٹے نے لکھا ہے کہ وہ بھینگی بھی تھی, آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا مرزا کا بیٹا لکھتا ہے کہ وہ سر سے گنجا تھا. ہاں. میں نے کہا وہ رنگ کا گنجی کالا تھا. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس کا ایک بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا وہ لونجا بھی تھا, وہ نہ مرد بھی تھا. ساری باتیں اسی کی کتاب سے دکھوا کے نا توجہ کرنا. میں نے کہا اسی شکل اب دیکھ لے, اب تجھے واضح ہو گئی, آنکھ بھی بھینگی بھی ہے, کانی بھی ہے, رنگ بھی گندلا ہے, ناک بھی پھولا ہوا ہے, سر بھی گنجا ہے, ساری صورت بتا کے نا توجہ, میری محنت ضائع نہ کرنا یار, میری محنت ضائع نہ کرنا, توجہ بھائی آپ کی انتظامیہ والوں, آپ کی توجہ کرنا ذرا. میں نے کہا یہ شیشہ لے, اپنی شکل دیکھ. دوسرا چٹی چمڑی والا تھا, نقشین اس کے اچھے تھے. میں نے کہا یہ تصویر بھی دیکھ, اپنی چٹی چمڑی بھی دیکھ. تجھے تیری ماں کی قسم جھوٹ نہ بولے, تجھے تیری ماں کی قسم بتا, تو سونے کہ مرزا سونا ہے؟ شاہ جی فیل پتیوں دے منہ چو نکلیا سونا تے میں ہی ہوں. فیل پتیوں دے منہ چو نکلیا, فیل پتیوں کو میری کیفیت کی ذرا سننا. میں کہہ پھر لعنت پاؤ سے کوڑے تھے جیڑا تیرے تو میں کوڑا ہے تے کلمہ پاڑو سے سونے ذاتی دے ورگا کسے مارے چکے آئی رہے. میں نے کہا کہ لعنت بیٹھ, اور اس کانے پہ, اس بھنگے پہ, اس لونے پہ, اس نگڑے پہ, وہ جو جیڑا تیرے نالوں بھی پیڑا ہے, جیڑا تیرے نالوں بھی کوڑا ہے, لعنت بیٹھ ہو جاتے ہیں کہ آن کلمہ ہوتا پر جدے ورگانا کوئی پہلے چکے نہ قیامت تک میں وآسر من کلم ترکت عینی وآجل من کلم تلد نساؤ خلقت مورعن من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ.
पाकिस्तान पाकिस्तान चौथा दुर्रा पीर जमात अली अमीर मिल्लत का। नबी सबसे ज्यादा उम्मत में हुसैन होता है, उससे ज्यादा कोई हुसैन हो तो वो नबी नबी नहीं होता। मैंने कहा लानत भेजे देते जरा तेरे नाल रिकॉर्ड है कलमा पढ़ ओदा जिन्हों वेख के मक्के वाले कलमा पढ़ लिया। फकीर मेरे गोलवी का इधारे गोलवी ने जो देख कर कलाम लिखा ना वो यही था ना, चेहरा वो दुआ के लिए था। वो अच्छा मुकचंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है, मखमूर यकी हिन मद भरिया इस सूरत नु मैं जाना था कि रब दी निशाना था किस शान पे शाना सब भैया लाओ मुक्ति मुकद्दस बोलते जवान मन भावनी चला की क्या खतर वो बिटिया गाली अलाओ खतर जो वादी आवाज हमरा वादी सरकरिया इन सिकटियां ते कुर्बानियां ते लखवार सदकड़े जानियां ते इन पार्टियां मुफ्त के कानियां ते शलावत भी गावन ओ घड़िया सुभान अल्लाह मा अजमला मा असरका मा अकमला किथे तेरी अरे किथे तेरी सना ए गुस्ताखी अखी किथे जानिया। कोई क्या बात कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं बोलन दी। चुप कर मेहरी अली इतना जा नहीं हो बोलन है वो हुसैन जमील चेहरा, खुदा की कसम ऐसा चेहरा। और दूर के चेहरे की बात करते हुए एक वाक़या कोट करूँ। यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है, अमर बिन हसीन उसका नाम है। बड़ी किताबें उठा कर आया, कहने लगा मैं मक्के वाले नबी से मुकाबला करने जा रहा हूँ। उसने दावा नबूवत किया है। चलते चलते मक्का आ गया, पूछा वो कौन है नबी जिसने दावा किया है। लोगों ने बताया वो हर में काबा में जलवागर है। हर में काबा में आ गया, आते ही पूछता है वो कौन है जिसने नबूवत का दावा किया है। किसी ने इशारा किया, वो दीवारे काबा से लगे बैठे हैं, टेक लगाए, वही है नबी हैं। वो गया, साथ चेले भी हैं, शागिर्द भी हैं, राहिब भी हैं और साथ मुरीद उसके। वो गए और किताबें बड़ी बड़ी उठा के वो यहूदी राहिब अमर बिन हसीन कहता है आपने नबूवत का दावा किया है। तवज्जो है, ज़हन न बढ़ जाए कहीं, बात मुख्तसर है। उस यहूदी ने कहा आपने दावा किया नबूवत का? फरमाया हाँ इन्नी रसूलुल्लाह, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। कहा आपने दावा किया है तो आपका नाम क्या है? फरमाया मुहम्मद। तीसरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं हुई, कहने लगा कलमा पढ़ा के मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। सुनिए जरा, जो चेले आए थे साथ गुरु के, वो कहने लगे इतनी किताबें उठा कर लाए हो और इतने बड़े वजन और दलाइल के साथ तुमने तो मुनाजरा करना था, तुमने तो मुबाहिसा करना था, तुमने तो मुबाला करना था और ना दलील मांगी ना सवाल किया और खुद ही उसका कलमा पढ़ गए। तो यहूदी अमर बिन हसीन, जिसका बाद में नाम अब्दुल्ला बिन अस्लाम रखा गया है, उसका जवाब सुनिए तो दिल ठर जाता है। वो फरमाते हो क्या पूछते हो? रब्बे मूसा की कसम, जब मेरी पहली निगाह इसके चेहरे पर पड़ी ना, मेरा दिल बोल उठा ऐसे खूबसूरत चेहरे वाला झूठा हो ही नहीं सकता। ऐसे खूबसूरत चेहरे वाला झूठा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान सुभान अल्लाह। मैं उस तरफ भी आता हूँ, पाकिस्तान की जाने भी आता हूँ। मेरे मिल्लत का फैजान क्या है? पहले से 5 नकाती दुर्रे जरा सुना लूँ। चौथा दुर्रा ये है, हजरत पीर जमात अली ने फरमाया जो नबी होता है ना, वो कायनात में सबसे ज्यादा हुसैन होता है, अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा हुसैन होता है। उम्मत में उससे बड़ा हुसैन कोई हो नहीं सकता। तो मिर्ज़इयों के बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अताए आले रसूल है, अताए मोहब्बत आले रसूल है। सदके जाऊँ मैं वारी जाऊँ इस मोहब्बत पे। तवज्जो करना पीर जमात अली मेरे मिल्लत का एक जुमला आपने फरमाया है नबी हुसैन होता है। मिर्ज़ा काना भी था, तेंगा भी था, तीरा भी था, लूला भी था, लूंजा भी था, गंजा भी था, टेंगा भी था और सुनिए जरा मिर्ज़ा खुसरा भी था। ये बात मैं बड़ी दलील से कह रहा हूँ और ये कोई शरा में शर्म नहीं है।
शरा में कोई शर्म नहीं है। ये मैंने गिरदान पढ़ी थी वहाँ दरबार मिल्लत में, आज यहीं पढ़ रहा हूँ। मिर्ज़ा कादियानी क्या था, उसका तारुफ क्या है, और किबला पीर साहब वहाँ से मेरी मुलाकात इनसे हुई। वहाँ से इन्होंने प्यार की माला मेरे गले में वही डाल दी थी, और वो माला आज तक मेरे गले में, वो प्यार की माला आज तक इन्होंने बनाई है। सवारी आज उसी सिलसिले यहाँ पहुँचाया। वो क्या था मिर्ज़े का तारुफ, वो ये था मिर्ज़े की हकीकत सुनो, जिससे सारी जिंदगी पीर जमात अली ने मुकाबला किया, और जो एक लम्हे के लिए भी पीर जमात अली मेरे मिल्लत के मुकाबले में एक लम्हे के लिए भी नहीं आया मुकाबले में। उस मरदूद का तारुफ तो सुनते जाओ। बात गुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराय में मुंहजोर, नबूवत का चोर, झूठ का मुजस्समा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदाब जमीर, फितरत नजीर, बादशाह कोहता अकल, मकरू खतोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल स्याह, ज़मीर उठा, फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तिदाद की शहरा, ईमान का शिकारी, दरे गैस का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सराफा कातिल, नंगे शराफत, लाइट हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुल्क जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका बेसत के वारिस, इमाम तकवा तलबीस, बाइस फखरे इब्लीस, पेशवाए को तकदीर, रहनुमाए ज़िंदगीन, मुसलमान कज़्ज़ाब का तर्जमान, असवद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानी में फितरे कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो करना, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्ज़ा कादियानी है। हाय हाय मिर्ज़े पे लानत, बेशुमार मिर्ज़े पे लानत। हाथ कोई बंदा थल्ले ना रखे, सारे हाथ से आके ज़ियारत कराओ। कैमरे वाले दोस्त ना कैमरा घुमा के उस हालत की ज़ियारत कराना जब इस इमारत में शामिल हो जाए। मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, उसके पैरोकार पे लानत, उसके मिशन पे लानत, उसकी तालीमात पे लानत, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पे लानत। सुनो, पीर जमात अली मोहम्मद शरीफपुरी ने डंके की चोट पे कहा है, पांचवा दुआ है, नबी हुसैन होता है, और तुम्हारा मिर्जा तो काना है, लूला है, लुजा है। ओए वो तो एक महल्ले का आम शरीफ आदमी नहीं है, नबूवत का तो दर्जा ही बड़ा ऊंचा है। बड़े बड़े मर्दों से हमारा मुकाबला हुआ, यकीन करें जब हम पीर जमात अली का पांचवा चौथा दुर्रा सुनाते हैं रमते खड़े हो जाते हैं। और पांचवा दुर्रा सुनिए तो बात को आखिरी इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे खड़े होकर पीर साहब अब तो जो करेगा पांचवा ये है कि नबी झूठ नहीं बोलता, नबी झूठ नहीं बोलता। पीर साहब ने लग करके कहा है मिर्ज़ा झूठ बोलता है, कभी कहता है मैं कलूजी नबी हूँ, कभी कहता है मैं तशरीही नबी हूँ, कभी कहता है मैं गैर तशरीही नबी हूँ, कभी कहता है मैं सिर्फ मसीह हूँ, कभी कहता है मैं मसीह मऊद हूँ, कभी कहता है नहीं ईसा इब्न मरियम मैं ही हूँ, कभी कहता है नहीं ईसा से बढ़कर हूँ, कभी कहता है मैं मुकम्मल नबी हूँ, कभी कहता है मैं मुकम्मल रसूल हूँ, कभी कहता है मैं मोहम्मद हूँ, कभी कहता है मैं मोहम्मद से बढ़कर हूँ, कभी कहता है मैं खुदा हूँ, कभी कहता है मैं खुदा का बेटा हूँ, कभी कहता है मैं खुदा की बीवी हूँ, कभी कहता है मैं खुदा का बाप हूँ। वह इतने बड़े बड़े सफेद झूठ मिर्ज़े ने बोले, किताबों में लिखे हैं, जो मिर्ज़ई शक करे। हमारा वीडियो रिकॉर्ड बयान हो रहा है, पीर साहब हाजिर तशरीफ फरमा है, जब कभी जरूरत हो मेरी बात गलत साबित करने की जरूरत तुम में आ जाए, ये जमात अली का फिक्री बेटा हाजिर है, ये रूहानी ये निस्बती बेटा है, ये रूहानी बेटा है। जब कभी मैदान लगाने की जरूरत हो आ जाना इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, ये फकीर भी आएगा, ये हसबी बेटा भी आएगा, ये रूहानी बेटा भी आएगा। तेरे मिर्जे की किताबों से तेरे मिर्जे के झूठ ना साबित कर दो तो भवाना चौक में गोली मार दे। अमीर मिल्लत
दिया लजपाल जेपी साहब लजपाल जेपी साहब मैं ये तुम्हारा जुमला दोहराई जा रहा हूँ। मिर्ज़ा कादियानी के झूठों पे अगर किसी मर्ज़ई को शक हो, किसी मर्ज़ई नवाज को शक हो कि ये जज्बाती नौजवान है, जज्बाती बातें कर गया, मेरी एक भी बात का हवाला गलत हो, ये पीर जमात अली अमीर मिल्लत का बेटा बैठा है, नस्बी बेटा है, ये पीर जमात अली का रूहानी बेटा है। तो यार इस बात को भी तो तुम्हारा कह दो ना, ये रूहानी बेटा, ये फिक्री बेटा, ये नस्बी बेटा। अगर किसी मर्ज़ई या मर्ज़ई के चेले चमचे को कोई शक पड़ जाए, अमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में आ जाए, मिर्ज़े की किताबों से मिर्ज़े के झूठ ना दिखाऊं तो भवाना चौक गोली तेरी, बंदूक तेरी, सीना इस फकीर का आदर है, लिख के दूंगा खून माफ। और अगर साबित हो जाए तो तुझसे कोई डिमांड नहीं, इतना ही है अमीर मिल्लत के कदमों पे आकर उसके नाने का कलमा पढ़ जा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हम शुक्रिया जो हो गई चौथे पे पांचवा दुर्रा 5 टन पाप की निस्बत से की बाकी शिद्दत है, मुझे अंदाजा लग रहा है, मैं आपको ज्यादा अब नहीं तंग करूंगा। 5 टन पाक की निस्बत से 5वां दुर्रा पीर जमात अली का सुना दिया। मिर्ज़े के मिर्ज़ा झूठा और नबी झूठ नहीं बोलता, जो झूठ बोले वो नबी नहीं होता। मिर्ज़े के दर्जनों झूठ मैं मिर्ज़े की किताबों से दिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। अरे अगर साबित हो जाए तो मिर्ज़े पे लानत डाल और अमीर मिल्लत की जाननशीनों के कदमों में आ जा, कलमा इन्हीं के नाने का पढ़ के मुसलमान हो जा। तुम्हें क्या पता अमीर मिल्लत की सस्ती का नाम है, सारी ज़िंदगी ख़ुद नबूवत के लिए पहरा दिया। ये जुमला ना सुना तो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी मजदूरी इसी में है। पीर जमात अली की सस्ती का नाम है। आपने एक मरतबा ऐलान किया था और आज इंडिया मुरादाबाद कॉन्फ्रेंस सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी और उसकी वसल पता क्या थी? ज़रा नक्शा तवज्जो करना भाई, मुझे भी पता है, मैं भी माइक के बगैर और पखे के बगैर हो गया हूँ। अब मैं भी तो शिद्दत करूँ, बल्कि आपसे बढ़कर हिद्दत तो शिद्दत मुझे लग रही है। लेकिन ये बात सुनिएगा, ये स्टेज पर तो 40 से 50 लोग होंगे और वो भी कोई सैयद है, कोई एक आलिम होगा, बाकी ना बाकी वैसे ही बिरादरान तरीक़त होंगे। ये कोई 2000 10,000 बंदा होगा, 20,000। लेकिन सुनो ज़रा, आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस में रास्ता है और सिर्फ स्टेज के ऊपर जो बंदे बैठे हैं ना, वो बंदे आम नहीं है, वो 6000 सुन्नी आलिम दीन बैठा है। 6000 सुन्नी आलिम दीन बैठा है। और पीर जमात अली का जुमला पता क्या है? ये जुमला सुनिए जरा, अच्छा सा जाए। आपने फरमाया, मौलवियों मेरे नाने की खत्म नबूवत का पहरा तुम दो, तुम्हारे चूल्हों का जामन जमात अली हो जाए। ये छोटी बात नहीं थी, पर मैं तुम मेरे नाने की खत्म नबूवत पे निकलो, तुम्हारे चूल्हों का जामन पीर जमात अली है। पीर जमात अली वो है, और जब पाकिस्तान बनने की बात आए तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली बन जाता है। चलेगा कि नहीं? कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली है। और मैं बहुत खास से इसका बात कर रहा हूँ, जब खत्म नबूवत पे बर्रे सगीर में पहरा देने की बात आए तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली बनता है। और जब मुजाहिदीन खत्म नबूवत को लंगर देने की बात आए तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली बनता है। और इल्मी और तारीख़ी बात करूँ तो ये है कि जब शुदी तारीख़ की रहनुमाई की बात हो तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली है। जब मजलिस वहदत की सरबराही का मामला हो तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली है। और जब शहीद गंज की क़यादत का मामला हो तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली बनता है। और जब पानी रूहानी बानी पाकिस्तान की बात हो तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली बनता है। और जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उंगली पकड़कर दो कौमी नज़रिया समझाने की बात हो तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली बनता है। अरे सुनिए ज़रा सुनिए, अरे जब 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 खत्म नबूवत पे मुहाफ़ज़े की बात आए तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली। और जब मिर्ज़ा कादियानी की मौत की पेशीनगोई की बात आए तो कुदरत का इंतखाब पीर जमात अली बनता है। और सुनिए सुनिए सुनिए, जब मदारिस को ज़मीन वक़्फ़ करने की बात आए तो
नईमिया मुरादाबाद को सारी एकड़ ज़मीन पीर जमात अली ने दी, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 3 लाख रुपया जो अतिया दिया तो पीर जमात अली ने दिया। ये जानशीन बैठे हैं, वारिस बैठे हैं। जब हिजाज मुक़द्दस में रेलवे लाइन चलने का प्लान आए तो 6 लाख रुपया पीर जमात अली ने उस वक्त दिया। जब बड़ा छोटा गोश्त 8 आने रुपए किलो था, वहाँ 6 लाख रुपया हजाज को देकर आते हैं। अबू अल अरब ऐसे नहीं बनते। अरे अरब वालों को इंतजार होता था कब अजम से जमात अली आएगा, हमारे चूल्हों का इंतजाम हो जाएगा। मिल्लत का फैजान पाकिस्तान, मिल्लत का फैजान पाकिस्तान, मिल्लत का फैजान पाकिस्तान। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। जीवे 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 फैज़ान हज़ूर क़िबला आलम साहबजादा पीर सैयद खुर्शीद हुसैन शाह साहब जमाती आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ उलमाए अहले सुन्नत जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम का मामला हो तो 3 लाख देने के लिए इंतखाब पीर जमात अली का। सुनिए जरा, मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं घंटों की तकरीर मिनटों में करना चाह रहा हूँ, अब वक्त नहीं है। और जब रद्द राफिजियत की बात आए तो इंतखाब पीर जमात अली, जब रद्द खारिजियत की बात आए तो इंतखाब मेहर अली और पीर जमात अली, और जब कांग्रेस को दावत मुबारज़त देनी हो तो इंतखाब पीर जमात अली। जब मुस्लिम लीग की हमायत में तारीखी फतवे की बात आए तो इंतखाब पीर जमात अली। तो सुनिए जरा, जब हिंदू नवाजी पे अबुल कलाम आज़ाद की डांट टपट की बात आए तो इंतखाब पीर जमात अली। और जब वैसराय हिंद को शहीद गंज के एहतजाज पर लॉर्ड वेलिंगटन की डांट टपट की बात आए तो इंतखाब पीर जमात अली। और जब सन्यासी हिंद के इंतखाब की बात आए तो इंतखाब पीर जमात अली। और जब अरब की तरफ से अबू अल अरब कुनियत की बात आए तो इंतखाब पीर जमात अली। जब अमीर मिल्लत के इंतखाब की बात आए तो इंतखाब पीर जमात अली, इंतखाब पीर जमात अली, इंतखाब पीर जमात अली, इंतखाब पीर जमात अली। इसीलिए तो कलंदर लाहौरी ने कहा के तेरे पाँव पे कहता है इकबाल, होकर से तेरी पैदा हुए इकबाल हज़ारों। तो बहुत सी पीर मिल्लत जो है ना, सारी ज़िंदगी आपने खत्म नबूवत पे पहना दिया आखिर तक, बल्कि आखिर से भी बाद तक। मिर्ज़ा मर गया 1908 में, पीर साहब ने बाद में भी गली गली उसके तहफ़्फ़ुज़ की, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की, सेमिनार्स की, और आज उनकी औलादें भी करवा रही हैं। आज देख लो, उर्स अपने दादे का है लेकिन मिशन दादे का ही चलाया है। और दादे का नाना जी, दादे के भी नाना जान जो है ना, जिनका कलमा पढ़ते हैं, इमाम मुख्तार कुल की खत्म नबूवत पे आज इन्होंने ये सेमिनार बदला, नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाई। अमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी के तमाम स्टाफ, ओहदेदारान, साथीज़ा, इंतज़ामिया का मशकूर हूँ, और बिलखुसूस सरपरस्त आला इस्लामी अमीर मिल्लत इस्लामी यूनिवर्सिटी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन अमीर मिल्लत जनाब पीर सैयद खुर्शीद हुसैन साहब जमाती, आप की सलाम में मोहब्बत पेश करता हूँ। आपने मोहब्बत फरमाई और हुक्म दिया तो मैं हाजिर हो गया। आखिरी मजदूरी लेने जा रहा हूँ, सर से लेकर पाँव से पसीने में गर्क हो गया हूँ। ये देख रहे हो ना, यकीन कर लो, सर से पाँव तक टखनों तक पसीना ही पसीना है। एक मजदूरी लेने जा रहा हूँ, मजदूर के नाना के लिए मजदूरी दे के जाना। अगर पीर जमात अली के मानने वाले हो तो ये मजदूरी दे के जाना। और मजदूरी सादा सी है, पैसे आपसे नहीं मांगता, ना पैसों की आपसे डिमांड है। तो ये तो इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, इनके दादे ने उठाई। जमात अली से इनसे हमारा सौदा है, ये आपका मामला नहीं है। आपसे जो मजदूरी लेने जा रहा हूँ ना, वो सुनिए ज़रा, जिंदगी भर किसी मरज़ई से दोस्ती करेंगे नहीं, करके मुझे बताएं, करोगे नहीं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनका क्या इरादा है? भाई जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, वो किनारे वालों, मेरी आवाज पहुंच रही है, जिंदगी भर किसी मरज़ई से दोस्ती करोगे? मरज़ई मर जाए जनाजा पढ़ोगे? मरज़ई की शादी पे जाओगे? मरज़ई को अपनी शादी पे बुलाओगे? मरज़ई
مرزائیوں کی مصنوعات مثلاً شزان اس کو پیو کے خریدو گے؟ مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے نا؟ مرزائیوں کا مکمل بائیکاٹ کرو گے؟ اور جب بھی ختم نبوت کی بات آئے میدان لگاؤ گے؟ پیر جماعت علی کا مشن لے کے بڑھو گے؟ امیر ملت کا فیضان آگے لے کے بڑھو گے؟ اور سپیکر بھی نہیں ہے، میں بھی نعرہ مارتا ہوں، جواب آپ کا مجھے سننے کو ملے، مجھے واپس جاتے جاتے سینے کی ٹھنڈک محسوس ہو۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں سارے ہاتھ اٹھائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، کئی نوازوں پہ لعنت، آستانہ عالیہ پیر جماعت علی، مرزا پیر جماعت علی، بابا مشن ہے پیر جماعت علی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا امیر ملت کا فیضان، امیر ملت کا فیضان، جیوے 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 جیوے، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف زندہ آباد۔ ماشاءاللہ جناب حضرت علامہ مجاہد ختم نبوت بدیع الزمان بٹی صاحب اپنے حسین ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر فرما رہے تھے۔ قبلہ پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب جماعت عزیزہ مجدوب آپ سے چند باتیں کریں گے۔ جو دوست کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ قبلہ پیر صاحب، جو دوست ادھر کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، سارے بہن جو جتنے جتنے کھلے ہو اٹھائیں بیٹھ جائیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ بابا یہ ادھر تھوڑا دیر اجل دوست کھڑے ہو نا بیٹھ جائیں، پتہ نہیں تمہیں کی بیماری ہے چنگ والے یہ علی پور شریف جاندے ہو اسے بھی اتنے سارے دوارے بندے کو گھیرا پا لیندے ہو، تمہیں اتنا نہیں پتہ لگتا کہ بندہ کھپن دیا دسن دیا گھیرا پا لیندے۔ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت